Ignited Minds Tutorials has recently shared a comprehensive video tutorial covering the mathematics question paper for CBSE Class 10, 2023. This tutorial is designed to enhance students' knowledge and understanding of mathematics concepts, thereby helping them excel in their exams. The video tutorial begins by introducing the importance of mastering mathematics and its real-life applications. It then dives into various topics included in the 2023 question paper, such as algebra, geometry, trigonometry, and statistics. Each topic is explained in a clear and concise manner, ensuring that students grasp the fundamental concepts effectively. Throughout the tutorial, the expert instructor provides step-by-step solutions to different types of problems, guiding students to solve them independently. The video also emphasizes important techniques and shortcuts to enhance problem-solving skills, which can be extremely beneficial during exams. Additionally, the tutorial emphasizes the importance of practice, offering supplementary practice questions along with their solutions. This enables students to reinforce their learning by attempting a variety of problems and further consolidating their knowledge. By providing a comprehensive walkthrough of the 2023 mathematics question paper, Ignited Minds Tutorials aims to equip students with the necessary tools and knowledge to achieve academic success. This resource serves as a valuable aid for CBSE Class 10 students, empowering them to approach their exams with confidence and excel in mathematics. ओके पीपल वी विल सॉल्व 2023 के क्वेश्चंस, ठीक है। जो सेट 1 सेट 2 आया था वही हम अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेट 1 है भाई साहब, मार्क्स 80, ओके चलिए भाई साहब इसको उठाते हैं अपन। सेक्शन ए, ओके सवाल यहाँ पे है सेक्शन ए में 2023 का क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल फंक्शन पी एक्स, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज 1। क्यों? एक ही जगह पे जीरो हो रहा है भाई साहब, ठीक है। जीरो मतलब क्या होता है, आपका y इज इक्वल टू पी एक्स, इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो y जीरो एक ही जगह पे हो रही है, देखो यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी 1। clear people? Okay, the value of k for which the pair of equations has infinitely many solutions. अभी देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है kx minus y is equal to 2 और ये कितना हो जाएगा 6x minus 2y is equal to 3। अभी वैल्यू ऑफ k क्या मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने के क्या वो है, बताइए। a बाई a1 बाई a2 is equal to b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये आपका कंडीशन क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए, सॉरी a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 ना, नहीं ये होगा, नहीं, इज इक्वल टू c1 बाई c2, कोइंसिडेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। इनफाइनाइट ये कोइंसिडेंट लाइन के हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे k बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 3। क्या ये हो रहा है भाई साहब? यही नहीं हो रहा है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है? 1 बाई 2 और 2 बाई 3 भाई साहब नहीं हो रहा है इक्वल, क्लियर है। सो द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, तो ये हो ही नहीं सकता, दिस कैन नॉट एग्जिस्ट, सो दिस विल बी इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके चलिए फटाफट से इसका देखते हैं। इफ p माइनस 1 p प्लस 1 एंड 2p प्लस 3 आर इन AP, सिंपल सा है भाई साहब। यहाँ पे क्या करेंगे, p प्लस 1 माइनस
p minus 1 should be equal to 2p plus 3 minus p plus 1. So this will be how much? p plus 1 minus p, और ये हो जाएगा प्लस 1. तो ये कैंसिल हो गया. यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब? 2. इधर कितना आ गया बोलो? 2p प्लस 3 माइनस p माइनस 1. सो दिस विल बी 2p माइनस p. कितना हो गया? p, और 3 माइनस 1 कितना हो गया भाई साहब? 2. तो इधर आ गया भाई साहब p की वैल्यू कितनी आ गई? 0. दिस विल बी दी ऑप्शन. ठीक है, p की वैल्यू आ गई 0. क्लियर है? ठीक है, और यही होगा ना, देखो p की वैल्यू 0 होगी तो -1 प्लस 1 और 3 AP में है. देखो ना भाई, -1 प्लस 1 और 3 यही आएगा ना इन तीनों की वैल्यू. क्या ये AP है? देखो -1 पे तुम +2 ऐड करोगे तो तुम्हारा आएगा ये, +2 ऐड करोगे तुम्हारा ये आएगा. 1 + 2 करोगे तो 3 आएगा. तो ये AP हो गया भाई. ठीक है, क्लियर है? In what ratio does the x-axis divide the line segment joining the points? x-axis, ठीक है, x-axis है भाई साहब, ये कैसे इनको डिवाइड करेगा? तो A आपका एक पॉइंट है 3, 6, और B आपका पॉइंट है भाई साहब -12, -3. तो x-axis किस रेशियो पे इसको डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट को? ठीक है, तो m/n हम मान लेते हैं भाई साहब. ठीक है, ओके. x-axis में जो पॉइंट है, लेट्स से द पॉइंट इज पॉइंट क्या हो जाएगा? मतलब ये लाइन है, देखो ये x एक्सिस से जा रहा है ऐसे, तो इस पॉइंट को अपन क्या मान लेते हैं? लेट्स से एक्स वाई. अभी x एक्सिस पे पॉइंट है तो क्या होगा? x होगा, और ये y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0. ठीक है, ये हो गया 0 आपका, है ना. तो x का क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू m, लेट्स से m/n में है. ठीक है, ये आपका a है, लेट्स से 3, 6, और ये आपका b है, दैट इज -12, -3. तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n ये होता है. इसको छोड़ो क्योंकि हमको x का वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन 0 तो हम लिखा सकते हैं क्योंकि y एक्सिस पे है. ठीक है, तो 0 की वैल्यू क्या हो गई बोलो? mx2, m इंटू -12, m इंटू -12 प्लस n इंटू 3. नहीं भाई साहब, y में होगा ना, सॉरी, m इंटू y2, तो m इंटू -3 प्लस n इंटू 6 अपॉन m प्लस n. ठीक है, चलिए इस m प्लस n को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ कितना आ गया बोलो? -3m प्लस 6n. तो ये हो गया तुम्हारा -3m इज इक्वल टू -6n. ये कैंसिल, तो m बाई n ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 6/3 to 1. So m is to n is equal to 2 is to 1. ठीक है, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है, आपका कोई लाइन है, देखो इसका ये एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो आप भाई साहब इसको तो आपको मालूम नहीं है, एक्स का कुछ कोऑर्डिनेट होगा 3, 4 जो भी हो, लेकिन ये आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस में आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है. तो आपका m जो x होता है वो कितना होगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा m और n भी अननोन है और ये x भी अननोन है. ठीक है, लेकिन हमारा इस साइड में ये वाला नोन है. तो y क्या होता है? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और ये हमको y बतौर 0 मालूम है यहाँ पे, तो इसको करके अपन m/n का रेशियो निकाल सकते हैं. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. ऊंचाई का एक बेलन वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ था यार पढ़ने में. चलो भाई साहब इसको कर लेते हैं फटाफट. ठीक है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टैंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ. ये पी क्यू भाई साहब टैंजेंट है. ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब फटाक से करते हैं इसको. ये 95 हो गया, ये दोनों बराबर है कि नहीं? रेडियस तो कितना हो जाएगा इनका? देखो 95 है तो 95 प्लस लेट्स से 2x लेते हैं हम. 95 प्लस 2x कितना हो गया? 180. भाई ये x है अगर, तो ये भी आपका x ही होगा, है ना. 95 प्लस 2x इज इक्वल टू 180. 2x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 180 बाई 180 माइनस 95
दैट्स हाउ मच 85 ना, 10 8 85 बाई 2 x की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कितनी, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 42.5 है कि नहीं भाई साहब। तो इसका वैल्यू हो गया कितना 42.5 और ये वाला कितना है 90 है ना। तो आपका एंगल ए बी क्यू कितना हो जाएगा, एंगल ए बी क्यू हो जाएगा आपका एंगल ए बी क्यू, क्यों 90, क्योंकि ये भाई साहब आपका टेंजेंट ऑन रेडियस, ठीक है। तो ए बी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 42.5, सो दैट विल बी हाउ मच 0.5 इधर आया, 9 से 2 गया 7, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा टिक मार्क करना है आपको, 47.5 वुड बी द राइट ऑप्शन हुआ, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके। 2 tan a इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे आपका 2 tan a इज इक्वल टू 3, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हो गया आपका 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a, ठीक है, क्लियर है। तो क्या करेंगे भाई साहब, आप इसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है, sin a से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे सॉरी cos a से डिवाइड कर दो, cos a से ऊपर नीचे भाई साहब cos a से डिवाइड कर दो, कितना हो गया आप हमारा बोलो 4 sin a बाई cos a, ठीक है, प्लस 3 cos a बाई cos a आपका 1 हो गया है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 sin a बाई cos a, इधर तो आपका 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 4 sin a बाई cos a माइनस 3, तो ये हो गया आपका कितना बोलो 4 tan a प्लस 3 अपॉन 4 tan a माइनस 3, ठीक है, ओके। यहाँ मुझे बताओ tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैंने दोनों तरफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया बोलो 4 tan a इज इक्वल टू 6 है कि नहीं, 4 tan a इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 डाल दो भाई साहब वैल्यू, 4 tan a है ना, 6 प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 3, 6 प्लस 3 हो गया 9, 6 माइनस 3 हो गया 3, ये हो गया आपका 3, ठीक है, आंसर इज 3। समझ में आता है पीपल, हम क्लियर है। एमसीक्यू है, कोई वर्किंग नहीं दिखानी है आपको, इससे भी शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है, कोई वर्किंग नहीं दिखाना है, फटाफट निपटाना है सवालों को। Alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus x minus 1, then 1 by alpha plus 1 by beta, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अल्फा और बीटा जीरोज हैं आपके पॉलिनोमियल के, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, अल्फा प्लस बीटा होता है क्या माइनस बी बाई ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, तो ऑब्वियसली वैल्यू है ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई 1 और सी की वैल्यू कितनी हो गई -1, है कि नहीं, ठीक है। तो आपका भाई साहब माइनस बी बाई ए मतलब -1 बाई 1, तो ये हो गया आपका -1 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सो दैट विल बी हाउ मच, सी हो गया आपका -1 अपॉन 1, तो ये हो गया आपका -1, ठीक है, क्लियर है। अभी ऐसा कोई रूट, तो आपका लेट्स से अल्फा डैश कितना है 1 बाई अल्फा, और यहाँ पे बीटा डैश की वैल्यू कितनी है 1 बाई बीटा, तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश सम ऑफ द रूट्स इज 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, सो दिस विल बी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो कितना हो गया 1, तो सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज 1। अभी अल्फा डैश इंटू बीटा डैश ये कितना हो जाएगा बोलो, अल्फा डैश सॉरी, तो दिस विल बी 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, है कि नहीं, यही है ना, अल्फा डैश की वैल्यू 1 बाई अल्फा है, बीटा डैश की वैल्यू कितनी है 1 बाई बीटा, तो ये हो गया कितना 1 बाई अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब कितना हो गया भाई साहब 1 बाई -1, तो ये हो गया कितना -1, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे यहाँ पे देखो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ये होता है भाई साहब। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये कितना आया भाई साहब आपका 1, तो एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स
ये हो गया माइनस एक्स, और अल्फा डैश बीटा डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। अच्छा ये सब तो ओ शी टर 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 1 बाई अल्फा बीटा इतना ही फाइंड करना है, हम क्यों इधर चले आए भाई साहब? सर कितना आंसर आया था भाई साहब? सॉरी मैंने सोचा इक्वेशन लिखना है। ओके तो आपका यहाँ पे कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच? -1, और अल्फा बीटा इज -1, तो आपका आ गया 1। ठीक है, सॉरी ये हो गया आपका ऑप्शन। द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स। रैशनल रूट्स कब हो जाएंगे भाई साहब? बोलो ना बोलो। जब b² - 4ac, ठीक है, इज इक्वल टू लीस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब ऐसा होता है ना रैशनल रूट्स का, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे b की वैल्यू बोलो क्या है? k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2, c की वैल्यू क्या है बोलो? -4। ठीक है, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट विल बी हाउ मच? k स्क्वायर 4 4 16, 16 2 32 प्लस 32 is greater than equal to 0. b square minus 4 into a into c. माइनस में आ रहा है यार, ये तो रिलीज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। क्या हो गया भाई साहब? ये b² - 4 इंटू 2 इंटू सी, 4 4 16, 16 2 32। सवाल में कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, विल चेक दिस वन। चलो भाई साहब फटाफट करते हैं। 3/4 tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर 45। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो सेक्स स्क्वायर 45 की वैल्यू होगी √2 इसका स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच? 3/4 इंटू 1/3 माइनस 2 प्लस 3/4 है कि नहीं भाई साहब? ए हुआ ना क्लियर? तो ये का कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4 माइनस 2, तो 0 हो जाएगा भाई साहब। 3/4 प्लस 1/4 बाई गया नहीं 4/4 ना, 1 - 2 दैट इज -1। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है भाई साहब? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू कितना होगा? 2πRh। ठीक है, सो दैट विल बी 2πRh। ठीक है, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया 2πRh इज इक्वल टू 94.2। ठीक है, तो 2 इंटू 3.14 इंटू R इंटू H दैट इज 5 इज इक्वल टू 94.2। 2 5 कितना हो गया भाई साहब? 10 इंटू 3.14 इंटू R इज इक्वल टू 94.2। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 94.2 अपॉन 3.14। ठीक है, और यहाँ पे इंटू 1/10 तो है ही। 9420 मतलब आपका हो गया 2 15 30, 7 14, 2 4 8,
2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और ये 0, 4 7 1 0, 157, 157 into 3, 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 3 1 ज़ा 3 1 4, तो भाई साहब जा रहा है 3 से, ठीक है। सो ये हो गया 471, 330 हो गया ये, ठीक है। 30 अपॉन, तो ये r की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3, ठीक है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस भाई साहब आपका हो गया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है, ओके। नीचे दिए गए बंटन 80 विद्यार्थी द्वारा, अच्छा, the distribution below gives the marks obtained by 80 students on a test, less than 10 3, less than 20 12, less than 30 so much, and so on so forth, ठीक है। The modal class of this distribution is, modal class कौन सा हो जाएगा, modal मतलब मैक्सिमम, कौन सा हो जाएगा, बोलो 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 फटाफट। लेस देन 10 मतलब क्या हो गया, 0 to 10 है ना, 0 to 10, तो आपका भाई साहब 0 to 10 ये कितना हो गया भाई साहब आपका 3, फिर आता है आपका 10 to 20, इसमें कितना आ जाएगा 12 minus 3 दैट इज 9, 20 to 30 इसमें कितना आ जाएगा, बोलो बच्चा पार्टी, 27 minus 12 दैट विल बी 7 से 2 गया 5, 2 से 1 गया 1, ठीक है। 30 to 40 ये कितना आ जाएगा, बोलो 30, ठीक है। 40 to 50 सो दैट विल बी 75 minus 57, 57, 8 plus 7 15, 6 से 5 गया 1, तो ये हो गया भाई साहब आपका 18। 50 to 60, 50 to 60, 80 minus 75 there is 5, ठीक है। क्लियर है, मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, 30 to 40 आपका हो गया मॉडल क्लास, सो दिस विल बी 30 to 40 दैट इज द मॉडल क्लास। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, तो कर्व सरफेस एरिया भाई साहब कितना होता है, पाई आर एल कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू एल कितना हो जाएगा भाई साहब, हैविंग हाइट कितना है 24 और रेडियस कितना है 7, तो ये वाला एल कितना हो जाएगा, एल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट इज 476 प्लस 49, नहीं 24 कितना होगा भाई साहब 576 ना, 576 राइट, 9 प्लस 6 15, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, 625 का अंडर रूट, 625 का अंडर रूट तुम्हें दे देगा 25, तो ये हो गया तुम्हारा 25, 25 इंटू 22 तो 50, और ये हो गया भाई साहब तुम्हारा 50, 0 5 5 यही आएगा ना, डिवाइड टू 50, 550 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सो आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज कितना हो जाएगा, बोलो डिस्टेंस होता है आपका क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला हिसाब से भाई साहब क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, हम x2 मतलब हो गया आपका -2 अंडर रूट 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल बी, दिस विल बी -2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस -2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, ये हो गया 4 5 ज़ा 20 प्लस 4 5 ज़ा 20, तो ये हो गया आपका कितना अंडर रूट ऑफ 40, अंडर रूट ऑफ 40 मतलब 4 इंटू 10, तो 2 अंडर रूट 10 हो जाएगा ये भाई साहब, 2 अंडर रूट 10 यूनिट्स, क्लियर है। दिस विल बी बेसिकली द डिस्टेंस, ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2/3 एंड +2/3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आपको बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब कितना हो जाएगा बोलो, -2/3 +2/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज -2/3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 0। ये होगा भाई साहब आपका, है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना आ गया, देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 4/9, एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जिसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 9x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 9x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं भाई साहब। अभी इसमें तुम 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या ही फर्क पड़ता है। अगर समझो तुमने इसको दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 5 9x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 आएगा। दिस विल ऑल्सो हैव द सेम रूट्स, तो आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यार यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको जरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऑप्शन को यहाँ पे ट्विस्ट एंड ट्विक करोगे, आपका आंसर तो ये आया है, लेकिन इस वाले में अगर आप दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी आपके वही रूट्स आएंगे। तो आपने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 × 5 क्या ही आएगा, 0, ठीक है। तो आपका ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? ओके ओके ओके। If the value of each of the observation of a statistical data is increased by 3, then the mean of the data, अगर वैल्यू आपने 3 से बनाया, ठीक है, तो लेट्स से आपके n वैल्यूज हैं, ठीक है, तो ईच इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो मतलब क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज इंक्रीज बाय 3, तो n1 + 3, ठीक है। लेट्स से आपका ऐसा है x1 x2, ऐसा करते करते आपके xn डेटा था, तो पहला आपका मीन क्या था, ये है ना, दिस वाज योर ओरिजिनल मीन, है कि नहीं, ओरिजिनल मीन, ठीक है। क्लियर है? अभी न्यू मीन क्या हो जाएगा, न्यू मीन विल बी इक्वल टू x1 + 3 प्लस x1 + x2 प्लस ऐसा करते करते xn तक प्लस x2 + 3 प्लस ऐसा करते करते xn + 3 अपॉन, ये तो n ही रहेगा ना, ठीक है। क्लियर है? इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, x1 + x2 + x3 ऐसा करते करते xn तक, है ना, xn तक कर लिया, प्लस यहाँ पे 3 कितने बार होगा, n टाइम्स, 3 × n, है ना, हर एक 3 को उठाओ यहाँ से, कितने बार हैं आपके, n टाइम्स हैं, तो n टाइम्स 3 को आप ऐड कर रहे हो, तो 3 × n लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, अपॉन n, ठीक है। इस n को भाई साहब देखो, जैसे तुम अगर a + b लिखते हो ना अपॉन c, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, a/c + b/c, तो यहाँ भी वही कर लो, x1 + x2 ऐसा करते करते प्लस xn अपॉन n प्लस 3n अपॉन n, तो ये हो गया कैंसिल, ये वाला क्या हो गया, ये वाला तो आपका पहला वाला ही है, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल मीन है, ओरिजिनल मीन है +3, तो आपका ओरिजिनल मीन 3 से बढ़ रहा है, ठीक है। सो व्हाट विल दिस बी, रिमेन्स अनचेंज, नो, इंक्रीजेस बाय 3, देन द मीन ऑफ द डेटा इंक्रीजेस बाय 3, ठीक है। क्लियर? ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय p एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय q। आपको मालूम है कि भाई साहब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जैसे p ऑफ p प्लस p कॉम्प्लीमेंट ऑफ p, दिस इज इक्वल टू 1, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय p q, ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपका प्रॉब्लम है ना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का हमेशा क्या होगा, सम आएगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर? ओके।
A girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. If 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? बोलो भाई साहब, 6,000 tickets are sold, ठीक है, how many tickets has she bought? Probability, total number of sample space कितना हो गया? देखो, probability of winning, तो let's say winning the first prize, ये हो जाएगा कितना बोलो? टोटल फेवरेबल, टोटल इवेंट्स ना, टोटल इवेंट्स है कि नहीं, 6,000 और अपॉन फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कैलकुलेट किया है उसने भाई साहब? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08, ये प्रोबेबिलिटी है उसकी। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं भाई साहब आपके? 6,000। उसने भाई साहब कितने टिकट्स, मतलब नंबर ऑफ टिकट शी हैज बॉट, राइट। फेवरेबल इवेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? किसी भी टिकट पे वो जीत सकती है ना फर्स्ट प्राइज, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच? 0.08 इंटू 6,000। सो ये आपके हो गए फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स मतलब नंबर ऑफ टिकट शी बॉट, नंबर ऑफ टिकट्स शी बॉट, ठीक है, शी बॉट। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका? 6 8 48 और ये 3 0 मतलब 2 कट गए, तो 480 टिकट्स। तो शी हैज गॉट 480 टिकट्स, ठीक है, क्लियर है? ओके। इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कांट स्विम, इफ 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम then the probability that he can swim is how much? तो कितने लोग स्विम कर सकते हैं? 15, ठीक है। तो 15 is favorable events and total number of events is 20, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ probability that the person can swim। तो 5 3 are 15, 5 4 are 20, तो ये हो गया आपका 3/4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? बहुत विस्तारित रूप से वर्किंग नहीं दिखा रहा हूँ, MCQ के क्वेश्चन से आपको ऐसे ही निपटाने हैं इसको, ठीक है, लेकिन ठीक तरह से निपटाने हैं। Okay, point 02 is the point of intersection of y-axis with the line 3x plus 2y is equal to 4. The distance of the point 02 from the x-axis is 2 units. ठीक है, तो आपका देखो पॉइंट दिया हुआ यहाँ पे P02, the point 02 is the point of intersection of y-axis with the line, ठीक है। कोई एक लाइन है, लाइन भाई साहब क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये एक लाइन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। पॉइंट P02 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द y एक्सिस विद द लाइन, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 02 फ्रॉम द x एक्सिस, y एक्सिस का इस लाइन पे इंटरसेक्शन हो रहा है 3x प्लस 2y पे, इस पॉइंट पे, दैट इज 02। द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा ना, ठीक है। 02 पे जा रहा है ये, देखो ये लाइन है कोई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये इस पॉइंट पे 02 पे कट कर रहा है, तो इस लाइन का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया? 2 यूनिट्स, ठीक है। आर वी क्लियर? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट्स, तो ये करेक्ट है भाई साहब। तो यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन दोनों ट्रू हैं। एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। पॉइंट 02 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ए और आर ट्रू है, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन किस चीज का मांग रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, मेरे हिसाब से तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट में तो ये जरूर है ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC is a rational number, okay,
द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल। ट्राइंगल टू स्क्वायर कहाँ रैशनल नंबर भाई साहब? क्या हो जाएगा इसका? इसका हो गया तुम्हारा 4 + 9 13 √13। हाँ, सम ऑफ स्क्वायर्स, अगर दो नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो वो रैशनल नंबर आएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो r तो ट्रू है, a तो फॉल्स हो जाएगा भाई साहब, ये रैशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि पेरीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 3 + √13, मतलब 5 + √13 विच इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये तो आपका फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, ये हमेशा रैशनल ही होगा। स्क्वायर किसी भी नंबर को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वो रैशनल ही होगा, ठीक है, कोई भी दो नंबर्स। ओके, सेक्शन बी, ए ग्राफिकल। चलो इसको उठा लेते हैं भाई साहब। इजी है भाई साहब, देखो x = 3 है और y = -4 है, ठीक है। तो भाई साहब ग्राफ ड्रॉ कर लो इधर, तो ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो समझ लो भाई साहब आपका ये हो गया 1 2 3 4, इधर है 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर है। x = 3, x = 3 भाई साहब कहाँ पे आ जाएगा भाई साहब, बताइए फटाफट। यहाँ पे हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, किसके, y एक्सिस के, ठीक है। तो हमने अगर भाई साहब यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू y एक्सिस, और y = -4, ये हो गया आपका y = -4 वाला लाइन, ठीक है। ऑब्वियसली कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे 3 - 4 पे, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, तो आपका सोल्यूशन ये हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके। In the given figure xz is parallel to BC, ठीक है। xz भाई साहब आपका parallel to BC है, एक मिनट, यहाँ पे आपको वर्किंग दिखानी पड़ेगी। तो xz आपका क्या है भाई साहब, parallel to BC है। az = 3 सेंटीमीटर, ओके भाई साहब। az की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर की है। So this is basically how much, 3 centimeter. ZC is equal to 2 centimeter, okay। तो ZC की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कितनी, 2 सेंटीमीटर। BM is 3 सेंटीमीटर, तो BM की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। एंड MC is how much, 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ XY, तो आपको भाई साहब यहाँ पे XY का लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके। सो ये दोनों भाई साहब पैरेलल हैं, ठीक है, 3 और 2। तो आपके कौन सा लॉ लगाएंगे यहाँ पे, BPT, ओके। सो इफ अ लाइन ड्रॉन, तो आप BPT थ्योरम से मतलब ये वाला जो रेशियो होगा वही इसके लिए भी रेशियो होगा, वही इसके लिए भी रेशियो होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ, यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, XY का लेंथ फाइंड आउट करना है।
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो इन ट्राइंगल्स ए वाई जेड एंड ए एम सी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये हो गया आपका कॉमन एंगल, है ना। और क्या हो जाएगा बोलो, कोई भी एंगल उठा लो, एंगल ए जेड वाई इज इक्वल टू एंगल ए सी एम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम सी, आपका हो गया भाई साहब ए टेस्ट, ठीक है, क्लियर है, ए टेस्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, आपका ए जेड बाई ए वाई जेड ना, हाँ, ए जेड बाई ए सी शुड बी इक्वल टू वाई जेड बाई एम सी शुड बी इक्वल टू ए वाई बाई ए एम, ठीक है। ए जेड बाई ए सी ये कितना हो जाएगा, 3 बाई ए जेड बाई ए सी, दैट इज 3 बाई 5 इज इक्वल टू वाई जेड की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, वाई जेड बाई एम सी दैट इज 5, ठीक है। तो वाई जेड की वैल्यू क्या हो गई 5, और ये 5 कैंसिल हो गया और ये हो गया 3, तो वाई जेड की वैल्यू हो गई भाई साहब 3, ठीक है, क्लियर है। वाई जेड की वैल्यू हो गई भाई साहब 3, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके, एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, तो वाई जेड की वैल्यू हो गई भाई साहब 3 3 3। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब इन दोनों ट्राइंगल्स में, है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम आते हैं इन ट्राइंगल्स, सिमिलरली हम यहाँ पे बोल सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ट्राइंगल ए एक्स जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ए एक्स जेड इज सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, हम बोल सकते हैं भाई साहब वही सेम ए टेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ए जेड बाई ए सी शुड बी इक्वल टू एक्स जेड बाई बी सी, है कि नहीं, एक्स जेड बाई बी सी। और तीसरा लिखे या ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ए एक्स बाई ए बी, ठीक है, ए एक्स बाई ए बी, ठीक है। ये वाले पे अपन को लिखना है सी पी एस टी, ठीक है। यहाँ पे भी भाई साहब आपका सी पी एस टी, ठीक है। ओके, तो अगर आपने बताया भाई साहब ए जेड की वैल्यू कितनी हो गई 3, ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 5, शुड बी इक्वल टू एक्स जेड नहीं मालूम, बी सी की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। तो एक्स जेड की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 3 इंटू 8 बाई 5, सो दैट विल बी 24 बाई 5 इज इक्वल टू एक्स जेड, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, तो एक्स जेड की वैल्यू कितनी हो गई 4.8। वाई जेड की तो और यहाँ पे भाई साहब वाई जेड की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स जेड माइनस वाई जेड, एक्स जेड की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी 4.8, वाई जेड की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो ये हो गई भाई साहब आपकी 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस मनम पीपलम। ओके, sin theta plus cos theta is equal to under root 3, then find the value of sin theta into cos theta। कैसे फाइंड आउट करोगे भाई साहब, यहाँ पे sin theta plus cos theta की वैल्यू दी हुई है अंडर रूट ऑफ 3, तो sin theta into cos theta स्क्वायरिंग, तो sin theta plus cos theta is equal to under root 3 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कितना आ जाएगा बोलो आपका, sin theta plus cos theta का स्क्वायर is equal to under root 3 का स्क्वायर, so that will be sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta is equal to 3, ये हो गया 1 plus 2 sin
2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, ये क्या और में है, करना है कर लेते हैं भाई साहब। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/√2, साइन अल्फा की वैल्यू है भाई साहब आपकी कितनी 1/√2, और कॉट बीटा की वैल्यू है कितनी √3। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भाई साहब कोसेक अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक अल्फा की वैल्यू हो जाएगी √3, और कॉट बीटा है, सॉरी कॉट बीटा। ठीक है, कॉट बीटा की वैल्यू है √3। ठीक है, कॉट बीटा मतलब कितना होता है 1/tan बीटा, कितना हो जाएगा बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा का वैल्यू बोलो भाई साहब, tan बीटा का उल्टा होता है कॉट बीटा, मतलब tan बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/√3, है कि नहीं, कॉट बीटा इतना है तो tan बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/√3, मतलब बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 30 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया आपका 30 डिग्रीज। चाहे तो यहाँ पे भी निकाल सकते हो, देखो कॉस अल्फा की वैल्यू तुम्हारी 100 थी, तो आपका बताओ कोसेक बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक बीटा मतलब हो जाएगा तुम्हारा कोसेक 30 डिग्रीज, मतलब 1/sin 30 डिग्रीज, 1/sin 30 डिग्री मतलब 1/1/2, तो ये हो गया 2, है ना। ठीक है, तो कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो √3 प्लस और वो 1/√2 है, ओ सॉरी ये 2 है ना, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा भाई साहब कितना, ये हो गया कोसेक अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई √2 और बीटा की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो आप आंसर लिख सकते हो 2 + √2। ठीक है, दिस वुड बी द आंसर, क्लियर, ओके। इसका कर सकते हो भाई साहब, मैं भूल ही गया यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर, वो ट्री डिवीजन करना पड़ेगा यार, वो बहुत पकाऊ लगता है मेरे को। 85 और 72 को वही मतलब b = AQ + R ऐसे चलता रहेगा ना आपका, ये नहीं है, यही तो है रैशनल डिवीजन में, HCF तो ऐसे ही निकालते हो ना। देखो रिमाइंडर तुम्हारा, ये रिमाइंडर होगा, ये क्या होगा >0 होगा और <= B होगा, ऐसा चलता रहेगा। तो इसमें कैसे करोगे फिर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच डिवाइड्स 85 and 72 लिविंग रिमाइंडर्स 1 and 2। तो 85 में 1 ऐड कर दिया भाई साहब 86 हो गया। ठीक है, 72 में 73 हो गया भाई साहब, इसका एलसीएम निकालना है। अरे बाप रे बाप, कैसे निकालोगे भाई साहब यहाँ, हाँ 72 ना, हाँ सॉरी 74। ठीक है, तो आपने भाई साहब 85 + 1 86, 72 + 2 4, ये वाला तुमको नहीं है, ये तो है ना तुम्हारे रैशनल डिवीजन में। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 86 और 74, 243 237 दोनों भी भाई साहब आपके, तो यहाँ पे आ गया 37 और दूसरा आ गया भाई साहब आपका 43। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2 ही होगा ना, 2 ही होगा, हाँ वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ही होगा ना। देखो 86 कितना है 2 × 43 और तुम्हारा ये 74 कितना है 2 × 37, ये दोनों तो भाई साहब आपके प्राइम नंबर्स हो गए, तो HCF कितना आ गया तुम्हारा 2। ठीक है, तो इसका मतलब फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 2 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा भाई साहब 1 रिमेनिंग आएगा। ठीक है, 84 आएगा, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 42 तुम्हारा क्वोशंट हो गया, और 72 को डिवाइड करोगे तो यहाँ कहाँ 2 आएगा इसको देखना पड़ेगा भाई साहब, इसका सोल्यूशन देख लेता हूँ मैं।
ओके फिलहाल इसको करते हैं। आपका 2 सवाल हो गए, एक ये और एक ये। अ बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ब्लू बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द फाइंड द प्रोबेबिलिटी द ड्रॉन बैग इज रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना हो जाएगा भाई साहब, 4/4 + 3 7 और 9 है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट येलो, तो येलो का भाई साहब प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 2/9। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके एक मिनट, हाँ इसको देख लेते हैं भाई साहब, इन दोनों के सोल्यूशन देख लेते हैं। कौन सा है 24, एक उधर भी हमारा एक सवाल नहीं हुआ था ना एमसीक्यू में, ये वाला। द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स। फोर ठीक है, इसको देखते हैं भाई साहब ये क्यों इसको उल्टा चल रहा है इस पे 24 we have to divide HCF of 85 - 1 करना पड़ेगा। ओके 85 - 1 एंड 72 - 2, हाँ करेक्ट, रिमाइंडर बच रहा है ना वो 85 - 1 84 और 72 - 2 करेक्ट। सो वी वर गोइंग रॉन्ग हेयर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा 85 - 1 that is 84, 72 - 2 that is 70। अब करो भाई साहब इसका 84 और 70, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 35 ज़ा, ठीक है। अरे चलो भाई साहब इसको ऐसे करते, एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं भाई साहब। तो ये हो गया आपका 84 हो गया आपका 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 3, 7 ज़ा 7 1 ज़ा 70 है भाई साहब 2 35, ठीक है 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो 84 हो गया तुम्हारा 2 × 2 × 3 × 7 और 70 हो गया भाई साहब 2 × 5 × 7 7 और ये हो गया 2, तो 2 × 7 दैट इज़ 14। ठीक है, ये तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसे डिवाइड करोगे तो ये आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। ओके 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 okay, half of the difference between two numbers is 2, the sum of the greater number and twice the smaller number is 13। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं let the greater number be x and the smaller number be y। half of the difference between the two numbers, तो x minus y, half of the difference between the two numbers is 2। तो आपका x minus y का वैल्यू कितना हो गया 4। ठीक है, x minus y का वैल्यू हो गया 4। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो 2x sum of the greater number and twice the smaller number, 2y is equal to 13। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका सेकंड इक्वेशन। दिस इज बेसिकली योर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो x plus 2y is equal to 13, x minus y is equal to 4, एडिंग। ठीक है, नहीं एडिंग नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। ये हो गया भाई साहब आपका सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस कैंसलम, ये हो गया y, 13 - 4 8, y हो गया भाई साहब आपका 8। हाँ क्या बोल रहे हैं,
हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स, अच्छा ये 3y, half of the difference of the two numbers is 2, the sum of the greater number and twice the smaller number is 13. हाँ 13 माइनस 4 9 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 9/3, दैट इज गोइंग टू बी 3, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग इन 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो दैट विल बी x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 7, so therefore the numbers are 7 and 3, ठीक है, क्लियर है, ओके। ये वाला तुम लोग को है, √5 इज अ इरेशनल नंबर, कैसे प्रूव करोगे, लेट कॉन्ट्राडिक्शन से, so let √5 be rational, ठीक है। तो हमने माना कि भाई साहब लेट √5 बी अ रैशनल नंबर, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर, सो देयरफॉर √5 कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय p/q। तो आपने भाई साहब p इज इक्वल टू √5q कर दिया, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे भाई साहब आप क्या लिख सकते हो, p² इज इक्वल टू 5q का स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट कैन यू से, यहाँ पे भाई साहब आपका p² इज रैशनल, ठीक है, ओके। और क्या लिख सकते हैं भाई साहब आप, बताइए। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p², तो p² को ऐसे लिख सकते हैं हम 5m, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है, 5m बेसिकली डिवाइड्स 5, है ना। अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, q², सो p² इज रैशनल, एंड 5 इज अ फैक्टर ऑफ p², 5 इज अ फैक्टर ऑफ p²। अब बताओ भाई साहब हम q को क्या लिखेंगे, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p² हो गया ये, और सो देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5 q को, तो हमने भाई साहब q को रिप्लेस किया, q इज इक्वल टू लेट q बी 5m, है ना, क्लियर है। सो देयरफॉर 5 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ p एंड q, और ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर है, दिस विल नॉट बी पॉसिबल। 5q, देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि p² का फैक्टर है 5, तो p का फैक्टर होगा 5, है ना, और इसका मतलब q भी आपका फी का फैक्टर होगा, क्योंकि देखो इकलौता 5 नहीं आएगा, 5 के साथ एक और 5 आएगा, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं, मामला समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, p² इज इक्वल टू 5q का स्क्वायर, आपने यहाँ पे p इज इक्वल टू √5 किया, तो इसका मतलब क्या होगा, अभी देखो जब आप किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो स्क्वायर होंगे, समझ लो भाई साहब। ऐसे 2 × 3 है कोई नंबर 6, अगर मैं 6 का स्क्वायर करूं तो 2 × 2 × 3 × 3 होगा भाई साहब, इसका मतलब क्या हो गया, इस q² में भी एक 5 है, क्या ये समझ में आ रहा है, व्हेन आई एम स्क्वायरिंग अ नंबर तो इस q² में भी एक 5 है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। वो वाला 5 अगर है तो इसका मतलब 5 q में भी है, दिस इज व्हाट इट इज, क्या ये समझ में आ रहा है। देखो सिंस 5, अब आपका भाई साहब p² कितना हो गया, 5q² हो गया, 5q², जैसे आपने p² किया है ना, तो जितने भी 5 एक क्या है बेसिकली, 5 एक भाई साहब क्या है, प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब p² में अगर 5 आ रहा है तो एक और 5 रहेगा, ठीक है, एक और 5 इस q² से आएगा, q² में भी भाई साहब आपका 5 रहेगा, दिस इज व्हाट इट मींस। और ये q² में अगर 5 है तो इसका मतलब दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ जाता है 5 का, ठीक है। आपने जैसे ही किसी नंबर का स्क्वायर किया है उसके सारे प्राइम फैक्टर्स का स्क्वायर होगा,
तो यहाँ पे 5 अगर आपको आ रहा है तो इसका मतलब दूसरा 5 क्यू स्क्वायर में होगा, और अगर दूसरा 5 क्यू स्क्वायर में है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं देखो 5 इज अ, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर. नाउ सिंस 5 इज प्राइम, since 5 is prime, therefore q square also will have 5 as a factor, so therefore हम यहाँ पे बोल सकते हैं q has 5 as a factor. so इसका मतलब therefore both p and q have 5 as a common factor, और जिसके वजह से ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है इफ इट्स अ रैशनल नंबर. ठीक है, सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से. क्या ये क्लियर है भाई साहब? ठीक है, -5, 3 and 5, 3 are two vertices of an equilateral triangle. Then find the coordinates of the third vertex given that the origin lies inside the triangle. तो आपका भाई साहब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला है आपका 5, 3 और ये वाला है आपका भाई साहब -5, 3. ठीक है, are the vertices of an equilateral triangle. Then find the coordinates of the third vertex given that the origin lies inside the triangle. origin भाई साहब ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है. कहाँ पे लाई करेगा? ऑब्वियसली भाई साहब इस वाले पे लाई करेगा, देखो यहाँ पे लाई करेगा. ठीक है, origin lies inside the triangle. अगर हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सो बट ऑब्वियस हो जाएगा कि origin will be somewhere here. ठीक है, तो origin आपका इस लाइन पे तो लाई नहीं करेगा, यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, लेकिन ये 0 होगा. ठीक है, ये आपका 0, 3 होगा. समझ में आ रहा है ये भाई? ये समझ में आ रहा है? इधर आपका -5, इधर आपका x एक्सिस पे ये साइड लाई कर रहा है, बट ऑब्वियस सी बात है. और ओरिजिन कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ओरिजिन विल बी समवेयर. ओरिजिन लाइज इनसाइड ना, गिवन द ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल. ओरिजिन लाई कैसे करेगा भाई साहब इनसाइड द ट्रायंगल? हाँ, वैसा भी हो सकता है. ओरिजिन अगर लाई करेगा तो अपसाइड डाउन ही रहेगा. करेक्ट, मतलब इस ट्रायंगल को भी हमें घुमाना पड़ेगा. दिस विल बी अपसाइड डाउन. ठीक है, तो ये हो गया आपका -5, 3, ये हो गया आपका 5, 3. ठीक है, ये हो गया आपका 0, 3, और यहाँ पे कहीं पे इसी लाइन पे देखो 0, 0 रहेगा. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कहीं पे 0, 0 रहेगा. ठीक है, क्लियर है? ओके, ऑल राइट हम पीपलम. तो ये हो गया आपका ट्रायंगल. आपको इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना है. सॉरी, ठीक है, इसका. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका B, ये हो गया C, और ये हो गया आपका A. कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए? हाउ विल यू फाइंड दिस आउट पीपलम? AB and AC विल बी इक्वल, वो समझा, लेकिन यहाँ पे देखो 2 तरीके हैं. इसको अगर मैंने XY माना तो थोड़ा लंबा खींचेगा. ठीक है, मतलब कैसा है देखो, x -5 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर, ये हो गया, ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा. ये आपको मानना पड़ेगा. ठीक है, तभी आपके लिए सवाल आसान होगा. 0 क्यों हो जाएगा? देखो यहाँ पे 0, 3 पे आएगा ही ये, और 0, 0 इस पे लाई करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब ये वाला जो x का कोऑर्डिनेट है ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, सो यू कैन सी दैट इट विल बी 0, और ये हो जाएगा आपका y. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा y. सो वी कैन से दैट, ठीक है, सिंस हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंस 0, 0 लाइज इनसाइड एंड 0, 3 forms the base of
perpendicular from vertex, therefore x coordinate of A will be equal to 0। ये आपका आसान बनाएगा काम, वरना लंबा चलेगा। आप इससे इसको माइनस करोगे, डिस्टेंस निकालोगे, इससे इसको माइनस करोगे, डिस्टेंस निकालोगे, और इसको इसके साथ इक्वल करोगे। ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हो आप तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे आपको सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालना है। y कोऑर्डिनेट निकालोगे कैसे भाई साहब, सिंपल कर लो, यहाँ पे देखो y, तो 0 माइनस, यहाँ पे हो गया आपका 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दैट इज 5 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, ये 5 प्लस 5 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100। ठीक है, ये कितना हो गया भाई साहब आपका 5 का स्क्वायर, दैट इज 25, और यहाँ पे हो गया भाई साहब प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो y माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 100 माइनस 25, दैट इज 75। तो y माइनस 3 कितना हो जाएगा बोलो, 5 अंडर रूट 3। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 अंडर रूट 3 प्लस 3, अंडर रूट 3 की वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 1.7 प्लस 3, सो दैट विल बी 7 5 35, 5 1 5 6 7 8, 8.5 प्लस 3, दैट विल बी 11.5। तो आपका क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 एंड 11.5 विल बी द कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, सॉरी अगर आपने 0y नहीं लिया तो आपने अगर xy लिया तो x माइनस माइनस 5 का स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बनेगा, ये एक इक्वेशन बनेगा, इन दोनों के साथ बराबर करके करोगे आप। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दो इक्वेशन बन जाएंगे। मैं आपको दूसरा मेथड दिखा देता हूँ। यहाँ पे सपोजिटली आपने मान लिया, इसको आपने मान लिया भाई साहब एक्स वाई इंस्टेड ऑफ 0y, तो क्या बनेगा पहला इक्वेशन बोलो, x माइनस माइनस 5 मतलब प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 5 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका 5 प्लस 5 हो गया 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो गया वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 10, और ये हो गया भाई साहब 100, ये हो गया आपका 100। ठीक है, सो कितना आ रहा है भाई साहब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया 100 है, ये 25 प्लस 9, 100 माइनस 25 कितना हो गया 75, 75 माइनस 9 कितना हो गया भाई साहब 75 माइनस 9 66, है ना। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया आपका। दूसरा इक्वेशन क्या ही बन जाएगा बोलो, यहाँ पे अपन इससे माइनस करेंगे तो x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अगेन कितना 100, सेम। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 100। ठीक है, फटाफट से लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ गया वाई स्क्वायर माइनस 10x आ गया यहाँ पे माइनस 10x। ठीक है, और y का वैल्यू कितना है भाई साहब माइनस 6y। अब कर लो इधर भाई साहब कितना है 100, 100 है इधर, इधर है 25 और इधर है 9, 25 प्लस 9 वही सेम आएगा ना भाई साहब, इससे नहीं आएगा यार सवाल। हाँ, इन दोनों को, हाँ ए बी और ए सी ना, तो ये दोनों कटेंगे ना, ये वाला इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे। तो डाल दो यहाँ पे, देखो ए बी और ए सी को अगर डाल देते हैं हम, यहाँ पे कितना हो गया एक्स स्क्वायर, लेकिन वाई स्क्वायर माइनस 10x है ना भाई साहब, माइनस 10x प्लस 25 प्लस
प्लस सॉरी नहीं 0 नहीं लिया है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक्स वाई लिया है मैंने, दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। अगर 0 ले लोगे तो यहीं पे मानना निपट जाएगा, वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। 0 विल बी एन आइडियल प्रोसेस, इसीलिए दिया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन को इसीलिए यूज़ करना है कि आपका जो ओरिजिन है वो ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, तभी जाकर आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, वरना ये लंबा चलेगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू एक्सटेंड। ओके, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with a center from the external. Prove that PTQ is equal to twice of OPQ. PTQ is twice of OPQ. ये आपको प्रूव करना है भाई साहब। ठीक है, तो फटाफट से भाई साहब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक तो ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, वी आर बेसिकली ज्वाइन, तो OPQ का ये आपका PTQ जो है वो टाइस हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन डाल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जॉइन ओ टी। ठीक है, जॉइन ओ टी। ओके, नाउ यहां पे कैसे करेंगे भाई साहब, यहां पे पी टी क्यू, ये भाई साहब आपका ओ पी क्यू का ट्वाइस होगा। हाउ डू वी प्रूव दिस? तो हमने मान लिया, देखो यहां पे पहले ये वाला और ये वाला ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये एक्स और ये एक्स हो गया भाई साहब। ठीक है, ये वाला कितना है 90, ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, है ना। इस ट्राइंगल में आओ भाई साहब। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 2x प्लस एंगल P या ट्वाइस ऑफ एंगल P इज इक्वल टू 180, है कि नहीं। ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 2P इज इक्वल टू 2x, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो P की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, x के बराबर हो गया। आपका समझ में आ रहा है? देखो मैं आपको प्रूव तो आपको करना ही पड़ेगा। ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। क्यों? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये दोनों साइड आपके बराबर, ये वाला कॉमन साइड, ये दोनों रेडियस, एसएसएस कंडीशन से दोनों भी क्या हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला कितना हो गया x, ये वाला भी कितना हो जाएगा x। ठीक है, अभी आओ इस ट्राइंगल पे, कौन से OTP में, OTP में आओ या OTQ में आओ, किसी में भी आओ। ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला है 90, ये x है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ये वाला एंगल देखो, ये वाला 90 माइनस एक्स। सिमिलरली इसमें भी ये वाला कितना होगा 90 माइनस एक्स। अभी आओ इस वाले ट्राइंगल में, कौन से में, OPQ में, तो 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स कितना हो गया 180 माइनस 2x प्लस एंगल P प्लस एंगल Q। ठीक है, देखो इन ये इतना समझ में आ गया, देखो समझो भाई साहब, कंस्ट्रक्शन जॉइन। तो अभी इन ट्राइंगल्स कौन कौन से भाई साहब, OPT एंड OQT क्या क्या बराबर बोलो, OP इज इक्वल टू OQ, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। फिर आपका भाई साहब PT is equal to QT, tangents from the same external point to a circle are equal in length, tangents from the same external point to a circle, tangents from the same external point to a circle are equal in length, tangents from the same external point to a circle are equal in length। ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलो, ये OT इज इक्वल टू OT कॉमन साइड, OT इज इक्वल टू OT दैट इज कॉमन साइड। तो अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, देयरफॉर ट्राइंगल OPT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQT बाई SSS। ठीक है, क्लियर है। सो देयरफॉर यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल PTO इज इक्वल टू एंगल QTO एंड लेट देयर बी इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमने मान लिया ये, लेट्स से।
ठीक है, ये हमने मान लिया, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ओ टी पी, इन ट्रायंगल ओ टी पी, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी ओ प्लस एंगल पी ओ टी इज इक्वल टू 180, ठीक है। ओ पी टी को अपन क्या लिख सकते हैं 90 प्लस पी टी ओ दैट इज एक्स प्लस एंगल पी ओ टी इज इक्वल टू 180। यहां पे रीजन देख लो तुमने क्यों 90 लगा, टेंजेंट एंड रेडियस एट पी ओ सी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर तो भाई साहब तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल पीओटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल पीओटी की वैल्यू होगी 180 माइनस 90, तो ये हो गया 90, और इधर x तो 90 माइनस एक्स, तो पीओटी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 90 माइनस एक्स। सिमिलरली हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सीधा लिख देना भाई साहब एकदम सिमिलर, ओ क्यू टी पी ओ टी आपका हो गया 90 माइनस एक्स, क्यू ओ टी इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। सो देयरफॉर पी ओ क्यू, ठीक है, एंगल पी ओ क्यू ये कितना हो जाएगा बोलो, एंगल पी ओ टी प्लस एंगल क्यू ओ टी दैट इज 180 माइनस 2x, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ये 180 माइनस 2x हो गया। क्लियर पीपलम, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, अभी हम आते हैं कौन से ट्रायंगल में, ओ पी क्यू। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी इज एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, वाई, बिकॉज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, है ना भाई साहब, ओ पी और ओ क्यू बराबर है, ठीक है। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 180, है ना। क्या लिख दो यहाँ पे, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। पी ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब यहाँ पे 180 माइनस 2x, ओ पी क्यू और ओ क्यू पी भाई साहब आपका बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो, क्योंकि आपका यहाँ पे ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू प्लस ओ पी क्यू लिख सकते हैं इसको, तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये कैंसिल, ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू इज इक्वल टू 2x, तो देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू x, एंगल ओ पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब x, ठीक है, क्लियर है। तो अपन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी टी क्यू, ओ पी क्यू आपका x हो गया, ओ पी क्यू x, तो पी टी क्यू कितना है देखो, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ये वाला x प्लस x, है कि नहीं, 2x, सो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 2, सो देयरफॉर क्लियरली वी कैन से दैट एंगल पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ठीक है, क्लियर है, ओके। देखो अभी तक तो मतलब समझो 1.5 घंटे हुए नहीं है, एंड वी हैव बीन एबल टू डू अप्रॉक्सीमेटली वॉट 29 सवाल हो गए। तो अगर आप धीरे से करेंगे विदाउट पैनिकिंग, आप आराम से 2 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। और कितने ही सवाल बचे हैं देखो, यहाँ पर सेक्शन डी बचा, तो 33 लगभग ख़त्म है ना। तो थोड़ा सा आराम से करेंगे तो 2-2.5 घंटे में आप फिनिश कर सकते हैं, बाकी का टाइम जो नहीं हुआ रहेगा उसको करने में जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तो मैं आपके साथ बातें करते हुए सवाल कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, ये आपका नहीं वेस्ट होगा, आपको समझाना नहीं है किसी को, आपको खुद ही सवाल करने हैं। तो आइडियली अगर आप एकदम सुव्यवस्थित तरीके से करेंगे, यू विल नॉट, और जो नहीं हो रहा है ना, जैसे मेरा भी 2 सवाल नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया उसको बाद में निपटाएंगे अपन, कीप दैट स्ट्रेटेजी, उसी पे भाई साहब दिमाग में उसी में मत सोचते रहो, ठीक है, लीव इट देयर एंड देन एंड मूव अहेड, क्योंकि जो तुम जानते हो उसको पहले निपटाओ, जो तुम नहीं जानते हो उसके बारे में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जो तुम जानते हो और जो तुम सॉल्व कर सकते हो उसको पहले निपटाओ, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, कल हम और करेंगे इसमें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपलम।